Hello dear students, welcome to the video today. So children, we are carrying on with this chapter minerals, where we are talking about the different kind of minerals found in the environment. We discussed about the minerals that are available in the environment, the ferrous minerals and the non-ferrous minerals. Non-ferrous minerals may we have understood about the bauxite. Just see the mining that has happened, and in the last class we have discussed about this. Just see the pie chart that is mentioned here, which is talking about the production of bauxite. State-wise share is there in percentage 2016-17 में, and Odisha is the largest bauxite producing state in India. इंडिया में क्या है कि लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है दैट इज़ उड़ीसा 2016-17 में. लुक एट द डाटा दैट इज़ मेंशन्ड हियर. बॉक्साइट के बारे में हमने पढ़ा. नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज़ द रॉक मिनरल्स. वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका पढ़ा हमने. वन थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास इज़ द हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग. माइनिंग के बहुत नुकसान हैं. This we try to understand. Now what we are doing is we are understanding about the rock minerals. Limestone found in the association with rocks that are composed of calcium carbonate, calcium and magnesium carbonate. So these rock minerals that are there, usme limestone is the most prominent, found in association with rocks are composed of calcium carbonate, calcium and magnesium carbonate. और ये देखा गया है, it is found in sedimentary rocks, most geological formations. ज़्यादातर formations में sedimentary rocks में we are finding these limestones. The basic raw material for the cement industry. सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक रॉ मटेरियल. सीमेंट का काम जब तक चूना नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा. एंड इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस. आयरन ओर को पिघलाना है भट्टी में. ब्लास्ट फर्नेस इज द बिग स्ट्रक्चर जहाँ पे कि the raw material cement industry is basically working. Now please understand कि छोटा नागपुर क्या है. It is a store house of minerals. छोटा नागपुर के बारे में whenever we are studying, we are understanding that is lot of minerals are available in the छोटा नागपुर plateau. Now just see, some of the pictures are here. If we see these pictures, we will be understanding कि what are the hazards of mining. माइनिंग के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं तो माइनिंग की सारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है. जस्ट सी, कोल फ्री कैटास्ट्रॉफ इज देयर एंड कोल फायर कैटास्ट्रॉफ. आई एम सॉरी, कोल के वजह से जो फायर लगी है. जस्ट सी the kind of problem that the people are facing here. Fire is spreading to the coal areas and below surface. इसमें क्या है, coal burns with oxygen down from the pores and online shafts में यहाँ पे coal is burning. People are at risk. बहुत ज़्यादा खतरा होता है लोगों को. खाली स्मल्टरिंग लाइन्स से ही नहीं, नॉट ओनली बाय स्मोल्डरिंग फायर्स, लेकिन पॉइजनस फ्यूम्स आर देयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर, जिसके वजह से कि अक्सर आग लग जाती है. नाउ जस्ट सी, जस्ट चेक, कोल यूनिट इज फाइन ₹300 crore. इतना देखो क्या होता है ना. what happens that wherever the coal industry is established, coal mines, I'm sorry, I'm talking industry, it's not manufactured in industries, it is extracted from the mines. सेंटर ने ऑलरेडी 14 crore सैंक्शन कर दिया है फॉर द फायर फेज ऑफ शिफ्टिंग.
तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इवैक्यूएशन ड्राइव हुआ। इतने सारे लोग, कोल माइन में अक्सर लोग फंस जाते हैं, मेनी पीपल गेट ट्रैप्ड। आप कोयले की खदान कर रहे हो, इतना अंदर में अचानक पानी आ जाता है, इतने नीचे के एरिया में पानी भी तो होता है। अब क्या हुआ, 20,000 crore ऊपर 50,000 ऑफ कोल बेल्ट, जहाँ पे भी ये माइंस हैं, वेयर द कोल इज एक्सट्रैक्टेड, ऑल दीज माइंस आर वेरी अनसेफ। These mines are not at all safe for any human being. Okay, so the first mining disasters that had happened in the past times, 54 people were dead. Chief of the company which is owning these mines said कि no less than half the mines did not meet the basic safety standard. माइंस में काम करना इज़ वेरी हैज़ार्डस, अपनी सेहत के साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। माइनिंग करते रहते हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है, एंड वर्किंग इन द कोल फील्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैव टू बी प्रॉपर। सेफ्टी अगर सही नहीं होगी तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल एंड डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल। नाउ strict safety regulations have been taken, for environmental laws are made to prevent mining को बचाने के लिए, for because it is becoming a killer industry. काफ़ी सारे लोग माइंस में जो हैं, माइंस की वजह से they are dying every year. ठीक है, industries are there, we all appreciate the strong dependence of industry and agriculture. Industry is there, agriculture is there, upon which mineral deposits are there, substances that are manufactured from them are kept. तो टोटल वॉल्यूम जो है वर्केबल मिनरल डिपॉजिट का, इट इज इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट इज देयर। मिनरल डिपॉजिट हम सिर्फ 1% पे ही काम कर पा रहे हैं, बाकी तो मिनरल्स तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वी आर कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है टू बी क्रिएटेड, टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इतना सारा मिनरल बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पूरा प्रोसेस है, द जियोलॉजिकल प्रोसेस इज देयर मिनरल फॉर्मेशन का, लेकिन इट इज़ सो स्लो, इतना धीमा चल रहा है कि रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, मतलब जो खर्च हो गया हम बहुत तेज़ी से उसको वापस नहीं पा सकते, वी कैनॉट गेट इट बैक। मिनरल रिसोर्सेज फाइनाइट है, नॉन रीन्यूएबल है, एंड रिच मिनरल डिपॉजिट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए है। शॉर्ट लिव्ड पोजिशंस, बहुत ही छोटे टाइम के लिए दिस मिनरल्स आर बीइंग केप्ट हियर। लगातार ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड, इसके वजह से क्या हो रहा है, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड मिनरल एक्सट्रैक्शन इज कमिंग फ्रॉम वेरी मच इनसाइड। greater depth along with decrease in quality. Quality is also not proper and it is coming from very deep inside. Greater depth. Please understand this. Okay? तो अब हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ये here the answer is given. लगातार efforts are being made to use our mineral resources. मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए लगातार गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स, प्लान्ड इन अ वेरी प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। ठीक से देख के काम करना है, प्लान्ड वे में, सस्टेनेबल, विच शुड बी अवेलेबल फॉर दी फोर्थ कमिंग जनरेशंस, सस्टेनेबल मैनर। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड। लो ग्रेड ओर्स को भी हम यूज़ कर पाएँ। पीपल ऑलवेज लुक फॉर वेरी हाई क्वालिटी मिनरल्स, लो क्वालिटी मिनरल से भी काफ़ी काम हो सकता है। एंड हाउ आर वी गेटिंग दीज मिनरल्स, कंजर्वेशन का जो मिल रहा है वो तो हमने देख लिया, लेकिन हाउ डू वी कंजर्व इट। रिसाइकलिंग हो रही है मेटल्स की, स्क्रैप मेटल्स यूज़ कर रहे हैं, अदर सब्स्टिट्यूट्स आर देयर,
तो these are the steps to conserve our mineral resources for the future. मिनरल रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा के रखना है. व्हेन वी गो लिटिल डीपर वी मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स जहाँ पे सब्स्टिट्यूट आर बीइंग यूज्ड. मिनरल्स के जगह पे और कुछ यूज़ करना पड़ता है, तो ये सब्स्टिट्यूट कहाँ से मिलता है ये भी समझेंगे. ठीक है, यहाँ देखो बार बार ये दिया हुआ है डिग अ लिटिल डीपर. थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो एक आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे कि मिनरल्स के अदर देन मिनरल्स व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग. ये सब्स्टिट्यूट कहाँ से मिलता है, दिस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एनर्जी रिसोर्सेज आर देयर. It is for all the activities these resources are required and हर एक चीज़ के लिए तो we need minerals. लेकिन यहाँ पे अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज, बिकॉज इट इज़ नीडेड टू कुक. खाना बन रहा है, लाइट एंड हीट इज़ ऑल्सो यूज्ड, व्हीकल्स गाड़ियाँ चल रही हैं, मशीनरी बन रही है इंडस्ट्रीज़ में. ये सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू पॉसिबल है. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स, आग से पैदा हो रहा है ये एनर्जी, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फ्यूल मिनरल्स हैं जो कि जहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके वी आर यूजिंग making electricity, that is coal, petroleum, natural gas. Energy resources का 2 parts है. Children please do remember these 2 parts of energy resources, conventional and non-conventional. conventional में क्या है, firewood, cattle dung cake, coal, petroleum, natural gas, electricity, everything is coming in conventional. Okay, something that's very natural, firewood, cattle dung cake, coal, petroleum, natural gas, electricity. Non-conventional में क्या है, solar, wind, tidal, geothermal, biogas, atomic energy. तो फायरवुड के लिए स्पेशली आग जलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा. तो फॉर द फायरवुड एंड फॉर द कैटल डंग, ठीक है, केक आर मोस्ट कॉमन. कैटल डंग केक, फायरवुड, लकड़ियों में खाना बनाते हैं, और बाकी तो गोहरी है ही. गोहरी आप समझ रहे हैं ना, काऊ डंग का जो वो मिलता है, बनता है फ्यूल. तो कंटिन्यूएशन इज़ देयर. इंक्रीजिंगली इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट क्योंकि फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है. द फॉरेस्ट एरिया इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे. डंग केक जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको बहुत डिस्करेज किया जा रहा है आजकल, क्योंकि वेरी वैल्यूएबल वो दैट इज़ दिस काउ डंग इज़ वैल्यूएबल फॉर द मन्योर. खेतों के लिए भी ये काउ डंग की ज़रूरत पड़ती है, विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर. अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी विल बी अंडरस्टैंडिंग. कन्वेंशनल सोर्स क्या है, कोल. इंडिया में कोल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, एंड देयर इज़ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड्स. एनर्जी के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है, पावर जनरेशन के लिए, एनर्जी के लिए, एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स. घर के लिए भी दिस इज़ ऑल वेरी मच रिक्वायर्ड. इंडिया क्या है, हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल. इंडिया जो है पूरी तरह से कोल पे डिपेंडेंट है for meeting its commercial energy requirements. Commercial requirement के लिए India is totally dependent on coal, and जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, we are already aware of the coal that compression of plant material, plants जो हैं धरती के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, and millions of years तक ये अंदर रहते हैं, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत कोल मिलता है. तो इट इज़ फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. बहुत तरीके से वी आर गेटिंग द कोल, एंड कितना अंदर से हम कोल को निकाल रहे हैं, हाउ इंटरनली वी आर एक्सट्रैक्टिंग द कोल दैट इज़ हियर. जस्ट सी, पिक्चर्स आर वेरी वेरी डिस्टर्बिंग.
किस चीज़ का पिक्चर है ये? दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ कोल माइनिंग. कोल माइनिंग हो रही है यहाँ पे. हाउ द coal is extracted, just see, it is very clearly mentioned here. Next children, what we are understanding is this coal mine के बाहर का एक व्यू दिख रहा है यहाँ पे. Plants are decaying, swamp में peat बन जाता है and it has low carbon, high moisture content, low heating capacity. तो इसमें the coal is made and lignite क्या है? is a low grade brown coal. Lignite is a low grade brown coal. It is soft, high moisture content and सबसे ज़्यादा हमको थोड़ा बहुत अच्छा कोल नहीं है, लेकिन देखो कोल तो कोल है. Wherever the coal is required, there it can be easily used. Okay, and सबसे ज़्यादा coal reserves we are getting in Neyveli in Tamil Nadu and generation of electricity. इलेक्ट्रिसिटी भी बन रहा है लिग्नाइट से. कोल जो कि बहुत डीप इनसाइड इट वाज बेरिड एंड टेम्परेचर जब इंक्रीज करता, बहुत अंदर तक इट इज़ बेरिड, वहाँ से इसको निकाला जा रहा है. जब टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, देन दिस काइंड ऑफ अ कोल इज कॉल्ड एज बिट्यूमिनस कोल. ओके, कोल के बारे में द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 7th ओनली. Yeah, I am giving you just an overview of the chapter. Otherwise ये सारी चीज़ें आपने बहुत पहले भी पढ़ी हुई है. सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? इट इज़ एंथ्रासाइट. हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल इज एंथ्रासाइट. इंडिया में कोल इज इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन एजेस. 2 समय का ये जियोलॉजिकल एज है जिसमें कि कोल इज़ देयर. जैसे इट्स डिवाइडेड. कोल इज़ अवेलेबल एट 2 प्लेसेस. एक तो हो गया गोंडवाना. 200 मिलियन ईयर्स है गोंडवाना लैंड. इतना पुराना लैंड है वो. 200 मिलियन ईयर्स इन एज. एंड टर्शियरी डिपॉजिट विच इज़ देयर, इट इज़ ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड. 200 मिलियन ईयर्स, 55 मिलियन ईयर्स, हम मिलियंस की बात कर रहे हैं. हंड्रेड्स तक तो देख नहीं पाते हैं. लेकिन लुक एट द रिसर्च वर्क दैट इज़ बीइंग डन. Please understand how high level research work is there. Major resources are there in Gondwana coal. It is metallurgical coal and located in the Damodar Valley. West Bengal में Damodar Valley में it is located. Children, please see, these are the nuclear coal mines, oil fields, major natural gas reserve. Then we have the high volt natural HVJ natural gas pipeline. ये देखिए कोल डिपॉजिट्स हम देख रहे हैं. वी आर सीइंग दिस कोल डिपॉजिट्स इन नेवेली. Children, you can see here it is Neyveli. Then what we are seeing is Singareni, Korba, Jharia, Bokaro. All these places we have the steel plants. जहाँ पे भी कोल इतनी ईजिली अवेलेबल है वहाँ पे तो स्टील प्लांट बनता है. ओके, नाउ कहाँ कहाँ पे गुड क्वालिटी कोल इज़ अवेलेबल? झारखंड में है, झरिया, रानीगंज, बोकारो. ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स. गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा. ठीक है, यहाँ पे भी वी आर गेटिंग सम कोल डिपॉजिट्स. गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा. तो ये जो कोल्स हैं टर्शियरी कोल्स, मेजरली इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय. कोल की अवेलेबिलिटी कहाँ है? दिस इज़ नॉट ज्योग्राफी माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ जीके. टर्शियरी कोल्स आर अकरिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड. एंड कोल, यू नो, प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ अ बल्की मटीरियल. बहुत बड़ा सा मटीरियल है जो कि यूज़ होते ही इट टर्न्स इनटू एशेस. ऑल द हैवी इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशंस,
दिस इज ऑल लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड्स के पास ये सिचुएटेड है। अब हम देख रहे हैं पेट्रोलियम। वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल, okay, tidal, geothermal, biogas, atomic energy. So we need to understand about this conventional source of energy. Petroleum is here, हम conventional में देख रहे हैं। It is providing fuel for heat, lightning के लिए। Lubricants are there, ठीक है। There is such material which is lubricant for machinery, raw material. Number of manufacturing industries are there जहाँ पे कि ये कोल का इस्तेमाल हो रहा है। दिस कोल इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जहाँ पे पेट्रोल रिफाइन हो रहा है, वहाँ पे दिस इज़ एक्टिंग एज अ नोडल इंडस्ट्री। नोडल मतलब अगर नहीं होगा तो नहीं काम चलेगा। जो उसकी मेन चाबी है वो यहीं पे है। एंड सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, बहुत तरीके के केमिकल इंडस्ट्रीज, दिस इज़ ऑल required, this is all requiring the petroleum refineries. petroleum products की ज़रूरत है इन इंडस्ट्रीज़ को, नोडल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फर्टिलाइज़र के बिना काम नहीं चलेगा। केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हमको चाहिए। तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे है, कहाँ मिलता है पेट्रोलियम? दिस इज़ समथिंग दैट इज़ जीके। पेट्रोलियम इज़ फाउंड विथ एंटीक्लाइंस, फॉल्ट ट्रैप्स, रॉक फॉर्मेशंस हैं टर्शियरी एज में। तो देर इज़ रीजन ऑफ फोल्डिंग, एंटीक्लाइंस, डोम्स, तो जहाँ पे ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड। ऑयल जहाँ पे फंसा हुआ है ऊपर की तरफ, जहाँ पे ऑयल इज देयर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब देखो, इट इज देयर, ऑयल बेयरिंग लेयर इज देयर, इट इज पोरस। जो एक हमारी लेयर बन रही है ना, उसके ऊपर भी बहुत सारा ऑयल आ जाता है। तो ऑयल बेयरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जहाँ से कि ऑयल में फ्लो। ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स। ओके, ऑयल इज प्रिवेंटेड, ऑयल में बहुत ज़्यादा मतलब आप ये समझिए, राइजिंग एंड सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन porous layers. Every time it is available in the pores, जहाँ पे pores में available नहीं है, oil is prevented from rising or sinking. Petroleum कहाँ कहाँ पे है? Between porous and non-porous rocks. Gas is lighter, usually it is above the oil. And कहाँ पे we are getting these coal fields? Please understand Mumbai High, Gujarat and Assam. Major petroleum production areas. मैप में तो हम देख ही रहे हैं, मेजर ऑफ शोर फील्ड्स, अंकलेश्वर इज मुंबई हाई, अंकलेश्वर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस प्लेस ऑल्सो। डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, हुग्रीजान, दीज आर द एरियाज that are situated on the bank of river Ganges. उस लैंड से रिवर होते हुए it is coming down. So नाहरकटिया, मोरान, हुग्रीजान are the important oil fields of the state. ऑयल फील्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये ऑयल फील्ड यहीं पे है। अब आप देख लीजिए नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आजकल तो नेचुरल गैस के बिना काम ही नहीं चल सकता है। नेचुरल गैस इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी, एंड विद और विदाउट पेट्रोलियम भी हमको नेचुरल गैस मिल रहा है। It is the source of energy as an industrial raw material. Petrochemical industries में natural gas is very prominent. Environment friendly है because of the low carbon dioxide emission, and it is the fuel for the present century. आज के ज़माने के लिए सबसे बड़ा यही एक fuel है, that is the natural gas. बहुत सारा नेचुरल गैस है। कहाँ पे मिला हुआ है? वी आर गेटिंग इट इन कृष्णा, कावेरी बेसिन। वेस्ट कोस्ट में हमको कहाँ पे मिल रहा है? मुंबई हाई।
एंड इसी के साथ लगे हुए द अलाइड फील्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स इन द गल्फ ऑफ कैम्बे, Andaman and Nicobar Islands. This is all important area having large reserves of natural gas. इतना सारा natural gas is here, and 1700 kilometer long Hazira, Vijaypur, Jagdishpur cross country gas pipeline links are there. Mumbai High Basin everywhere with the fertilizer. 1700 kilometer long Hazira, Vijaypur, Jagdishpur cross boundary. 1700 kilometer is there, and this artery has provided an इंडिया का जो गैस प्रोडक्शन है जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था उसको जैसे इट हैज़ कम अप एज अ वेन, जान आ गई. एंड compressed CNG for vehicles is the best example of the natural gas. Okay, electricity के बारे में we'll be discussing in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.